Hello students, today we are going to study 18 number chapter Ecosystems. Now students, can you recall and classify these two topics are reduced from your syllabus, and also component of ecosystem is also reduced from your syllabus, but in video we are discuss both these concepts. Now can you recall which factor do you found in your surrounding? Now there are some biotic factors and abiotic factors are found in our surrounding. That means biotic means the living things and abiotic means non-living things. In biotic there are different examples from animal to human being and microorganisms also in biotic factors. Now in abiotic factors means nutrients, solar energy, different gases, air, water, minerals, water, these all are abiotic factor. Now second question is, can you tell, are these factors directly or indirectly related to you? Yes, these all biotic and abiotic factors which is found in our surrounding that are directly or indirectly related to us. Now classify different things are given that are living and non-living thing factor from below. First one is the sunlight. Sunlight is a non-living thing. Sunflower is living thing. Elephant, lotus, algae, grass, ant, cat, lion, these are all living things. And non-living things, sunlight, stone, water, soil, fern, air, these all are non-living things. Factor means abiotic factor. Now we discuss what is meant by ecosystem. The world around us is made up of living and non-living factors. जो हमारा वर्ल्ड है तो वो पूरा जो लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर से बना हुआ है. All these living and non-living things or factors are related to each other directly or indirectly. लिविंग आर कॉल्ड बायोटिक फैक्टर. तो अभी हमने डिस्कस किया जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनको बोलते हैं बायोटिक फैक्टर और जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनको बोलते हैं अबायोटिक फैक्टर. देयर आर कंटिन्यूस इंटरेक्शन बिटवीन दीज ऑल लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग फैक्टर. तो ये जो बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं तो उनमें कंटिन्यूसली इंटरेक्शंस होता रहता है. Living organism and their habitat environment are co-related with each other. जो हमारे जो लिविंग थिंग्स है पूरे वर्ल्ड में तो उनका हैबिटेट एनवायरनमेंट तो ये एक दूसरे पर रिलेटेड होता है. द स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म ड्यू टू दिस रेसिप्रोकल रिलेशनशिप इज कॉल्ड एन इकोसिस्टम. तो इसे ही हम इकोसिस्टम बोलते हैं. जो बायोटिक एंड अबायोटिक जो फैक्टर्स होते हैं दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर तो उनके रिलेशनशिप को हम इकोसिस्टम बोलते हैं. बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स एंड देयर इंटरेक्शन फॉर्म एंड इकोसिस्टम. जो बायोटिक्स फैक्टर होते हैं एंड अबायोटिक फैक्टर तो दीज बोथ फैक्टर्स आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर एंड फॉर्म इकोसिस्टम. नाउ हियर chart is given. The ecosystem is converted into biotic factor and abiotic factor. In abiotic factor there is the physical and chemical factors. In physical factor there is air, water vapor, minerals, soil and sunlight. जो abiotic factors होते हैं तो उनमें आता है air, water vapors, minerals, soil and sunlight. And in chemical factors they are converted into two, that means inorganic and organic substance.
In inorganic, hydrogen, oxygen, nitrogen, calcium, iron, potassium, sodium, these elements are included in inorganic substance. Now organic substance, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, जो हम फूड खाते हैं, तो these all things are available in our food. Protein, vitamins, carbohydrate, lipid, these are all organic substance. Next is in biotic factor. The biotic factor is converted into autotrophic and heterotrophic. In autotrophic there is the producers. जो ऑटोट्रॉफिक फैक्टर्स होते हैं वो प्रोड्यूसर्स आते हैं. प्रोड्यूसर्स मीन्स प्लांट. एंड इन हेट्रोट्रॉफिक दैट मीन्स कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर. जो कंज्यूम करते हैं प्रोड्यूसर को तो उसे हेट्रोट्रॉफिक फैक्टर में कन्वर्जन किया जाता है. तो कंज्यूमर में आते हैं एनिमल्स एंड डिकम्पोजर में माइक्रोब. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डीके मटेरियल और जो डेड एनिमल्स होते हैं प्लांट्स होते हैं उनको डीके करते हैं, डिकम्पोज करने का काम करते हैं. दिस आर माइक्रोब्स. एंड इन animals there are three types. First one is the primary consumer, second one is the secondary consumer and third one is the tertiary consumer. तो एनिमल्स में प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, मतलब डायरेक्टली जो प्लांट्स होते हैं उनको खाते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर. सेकंड इज सेकेंडरी कंज्यूमर. तो ह्यूमन बीइंग आता है इसमें. फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग वेजिटेबल्स खाते हैं, that is secondary consumer. After that tertiary means lion, tiger, these are tertiary consumer. For example here for जो रैबिट होता है वो ग्रास खाता है, रैबिट को लायन खा जाता है, तो दैट मीन्स टर्चरी कंज्यूमर. नाउ डू यू नो the organic substances, that means carbohydrates, proteins and lipids from dead bodies of plants and animal are converted into inorganic substances like hydrogen, oxygen, calcium, iron, sodium, potassium, etc. by microorganisms. Therefore microbes are said to be decomposers. अब जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है तो हमने अभी पढ़ा जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स होता है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में आता है. तो दीज आर इन प्लांट्स. तो ये प्लांट्स में होता है. जब प्लांट्स डेड हो जाते हैं तो उनको, जब प्लांट्स डेड होते हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स जब डेड होते हैं तो उनका कन्वर्जन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम में इसका कन्वर्जन हो जाता है. कैसे हो जाता है? जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो उन एनिमल्स को या प्लांट्स को जब डिकम्पोज कर देते हैं तो ये सब जो मटेरियल है इनऑर्गेनिक मटेरियल, दीज आर कम इन सॉइल. तो ये सॉइल में चला जाता है. दैट मीन्स इट कन्वर्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इज कन्वर्ट इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. तो इसी वजह से जो माइक्रोब्स होते हैं उनको डिकम्पोजर बोला जाता है. Now next is the structure of an ecosystem. जो इकोसिस्टम हमने पढ़ी तो उसका स्ट्रक्चर एग्जैक्ट क्या है वो पढ़ेंगे. लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ अबायोटिक फैक्टर्स एंड दे हैव डिफरेंट कैपेसिटी टू अडेप्ट विद दोज अबायोटिक फैक्टर. अब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको डिफरेंट टाइप के अबायोटिक फैक्टर्स की ज़रूरत होती है. फॉर एग्जाम्पल दे वॉन्ट्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोड्यूसर्स. अबायोटिक में दे रिक्वायर एयर, वाटर, डिफरेंट मिनरल्स, सनलाइट. दैट्स वाई द अबायोटिक फैक्टर्स आर डिपेंड ऑन अबायोटिक फैक्टर्स. सम माइक्रोब्स नीड ऑक्सीजन वाइल अदर्स डोंट. तो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और कुछ ऐसे होते हैं कि उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती, वो बिना ऑक्सीजन के ही ग्रो हो सकते हैं. सम प्लांट्स नीड मोर सनलाइट वाइल अदर्स ग्रो वेल इन शेड.
तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं कि उनको सनलाइट की ज़रूरत होती है और कुछ ऐसे होते हैं जो शेड में भी ग्रो हो सकते हैं. तो these are the vice versa. Each and every abiotic factor, that means air, water, soil, sunlight, temperature and humidity affect the biotic factor in the ecosystem. अब जो अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, तो इसका इफेक्ट बायोटिक फैक्टर्स पर होता ही है इकोसिस्टम में. The abiotic factors in an ecosystem decide which biotic factors will survive in it and what will be their number. तो अबायोटिक फैक्टर पर डिपेंड होता है बायोटिक फैक्टर उस इकोसिस्टम में कैसे सर्वाइव करे. अगर एक्सट्रीम ह्यूमिडिटी है, एक्सट्रीम हॉट कंडीशन है, तो वहाँ कुछ ऐसे ही बायोटिक फैक्टर्स होंगे जो वो अडेप्ट कर सकेंगे. फॉर एग्जाम्पल इन डेजर्ट रीजन देर इज़ कैमल कैन सर्वाइव और अडेप्ट. तो कैमल की जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे अडेप्ट होता है कि वो उस क्लाइमेट में खुद को अडेप्ट कर सके. The proportion of abiotic factor in an ecosystem is always changing as a biotic factors use or excrete abiotic factors. अब जो अबायोटिक जो फैक्टर्स होते हैं इकोसिस्टम में, तो उनको अबायोटिक फैक्टर की ज़रूरत होती है. फॉर एग्जांपल एयर, वाटर एंड एक्सेट्रा. तो ये जो अबायोटिक फैक्टर होते हैं तो ये लिविंग थिंग्स एज्यूम और कंज्यूम करते हैं. तो कंज्यूम करने के बाद एक्सक्रीशन भी होता है. तो जो एक्सक्रीशन होता है उनको भी अबायोटिक फैक्टर बोला जाता है. तो इसी वजह से अबायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं उनके प्रपोर्शन में डिफरेंट चेंजेस देखने को मिलते हैं. एवरी बायोटिक फैक्टर अफेक्ट अबायोटिक फैक्टर एज वेल एज अदर बायोटिक फैक्टर्स अराउंड इट. तो जो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं तो उनका इफ़ेक्ट उन पर अबायोटिक फैक्टर्स का इफ़ेक्ट होता ही है. एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम plays a particular role while living moving in that ecosystem. तो कोई भी इकोसिस्टम है तो उसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, एक सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म भी खुद का रोल उस इकोसिस्टम में प्ले करता है. तो एवरी लिविंग थिंग्स इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट ईच एंड एवरी ecosystem. The position of any living organism in contrast to other living organism and role is playing is called niche. अब कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है उनकी जो पोजीशंस होती है तो वो खुद का जो रोल प्ले करता है इकोसिस्टम में, तो उसे ही बोलते हैं नीचे. फॉर एग्जाम्पल a sunflower plant is a garden evolves oxygen in an air and provide food and shelter for insect like ant, honey bees etc. तो एग्जाम्पल दिया है नीचे मीन्स वॉट. तो एवरी लिविंग थिंग्स प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन दैट इकोसिस्टम. तो कौन सा भी अगर लिविंग थिंग है, छोटे से छोटा भी, फॉर एग्जाम्पल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये खुद का रोल प्ले करते हैं उस इकोसिस्टम में. तो यहाँ एक एग्जांपल दिया है सनफ्लावर प्लांट का. जो सनफ्लावर प्लांट होता है तो वो ऑक्सीजन इकोसिस्टम में ऑक्सीजन छोड़ने का काम करता है, फूड देता है, शेल्टर देता है इंसेक्ट्स को, फॉर एग्जांपल एंट, हनी बीज एक्सेट्रा. तो दीज आर कॉल्ड नीचे. नाउ देयर आर सम diagrams is given interactions among factor of an ecosystem. अब यहाँ जो एनिमल्स दिए हुए हैं, प्लांट्स दिए हैं, दैट मीन्स अबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स. तो ये जो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं एंड अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं ये एक दूसरे पर कंटिन्यूसली रिलेटेड होते ही हैं. नाउ वी सी वन बाय वन. फर्स्ट वन इज द अबायोटिक factor. In abiotic factor, there are different types of nutrients, solar energy, carbon dioxide, nitrogen, water, minerals, etc. It comes in abiotic
फैक्टर, तो ये सब अबायोटिक फैक्टर में आता है, दैट मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स। ये जो अबायोटिक फैक्टर होता है वो बायोटिक फैक्टर के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। इन बायोटिक फैक्टर देयर इज द एग्जाम्पल ऑफ प्लांट, दैट मीन्स प्रोड्यूसर। अब जो प्लांट्स होते हैं तो वो फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, फूड प्रोडक्शन का काम करते हैं विथ हेल्प ऑफ सन लाइट और सोलर एनर्जी। अब सोलर एनर्जी से वो हीट लेते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में सिर्फ सनलाइट इम्पोर्टेंट है क्या? नो, देयर इज इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, डिफरेंट मिनरल्स, नाइट्रोजन, एयर ऑल्सो, कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये सब अबायोटिक फैक्टर प्लांट्स को मिलते हैं तो तभी फूड प्रोडक्शन होता है। दैट मीन्स दिस बायोटिक फैक्टर्स आर डिपेंड ऑन अबायोटिक factor. Soil is also important for this biotic factor. So soil is also a biotic factor. Now these biotic factor are depend on this biotic factor. अब जो यहाँ बायोटिक फैक्टर्स दे मीन्स लिविंग थिंग्स, प्राइमरी लिविंग थिंग्स। तो बायोटिक फैक्टर में आता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्चरी कंज्यूमर। तो जो बायोटिक फैक्टर है, फॉर एग्जांपल हियर गोट, तो गोट क्या खाएगी? ग्रास खाएगी। तो ग्रास खाने के बाद गोट को एनर्जी मिलेगी, तो गोट को कौन खाएगा? टाइगर खाएगा। दैट मीन्स द प्राइमरी इज प्लांट्स, सेकेंडरी इज गोट एंड टर्चरी इज टाइगर। तो ये सब बायोटिक फैक्टर में आता है। तो आफ्टर दैट व्हेन इट डाई, जब ये एनिमल्स डाई होते हैं तो इनको डिकम्पोज करने का काम कौन करेगा? माइक्रोब्स करेंगे। तो जब माइक्रोब्स इन डेड बॉडीज़ को डिकम्पोज करेंगे तो जो सॉइल होती है उसमें मिनरल्स रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। तो उसी सॉइल में जो माइक्रोब्स है फिर से ऐसे प्लांट्स ग्रो करेंगे, फिर से ए प्लांट अबायोटिक फैक्टर्स में कन्वर्जन होगा, या जो माइक्रोब्स होते हैं वो फिर से अबायोटिक फैक्टर्स मीन्स न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन, मिनरल्स ये सॉइल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये फिर से इसमें और प्लांट ग्रो होंगे। दैट मीन्स दिस इज अ कंटिन्यूसली इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स. This is the interaction among factor of an ecosystem. Now can you tell, student, first question is what is the role of microbes in above interactions? अब जो अभी interactions हमने पढ़ा, interaction among factors of an ecosystem, तो इसमें जो microbes होते हैं that is the very important role. That means these microbes are decompose that dead bodies. तो ये डिकम्पोजिशन का काम करते हैं। तो डिकम्पोजिशन होने के बाद जो सॉइल होती है उसके अंदर ये अबायोटिक फैक्टर्स इंक्लूड होंगे, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स एक्सेट्रा. सेकंड क्वेश्चन इज हाउ डू प्रोड्यूसर्स ऑब्टेन अबायोटिक फैक्टर्स? अब जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर इज प्लांट, तो इनको अबायोटिक जो फैक्टर्स होते हैं मीन्स न्यूट्रिएंट, वाटर, मिनरल्स, तो ये कैसे मिलते हैं? अब जो प्लांट्स होता है उनके जो रूट्स होते हैं कि सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं वो एब्सॉर्ब कर लेते हैं. अब ये न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलते हैं? फ्रॉम दिस माइक्रोब्स. तो दिस आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर. थर्ड क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर डू द कंज्यूमर्स गेट देयर फूड? अब जो कंज्यूमर्स होते हैं मीन्स secondary consumer, tertiary consumer. So these consumer, primary also. In primary there are some insects are there. So these consumers obtain their food from biotic factor, that means plants. और जो tertiary होता है animals, for example lion and tiger, it consume their food from secondary consumers. Most of ecosystem are complex and there is tremendous quantitative and qualitative variety of species in them. अब जो इकोसिस्टम्स होती है तो इकोसिस्टम बहुत सारी होती है, अलग अलग टाइप्स की होती है. इट इज़ कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम,
तो ये जो इकोसिस्टम होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत ही उसमें अलग अलग बायोटिक एंड अबायोटिक्स फैक्टर्स होते हैं। देर आर डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्पेसीज ऑल्सो देयर। तो एक इकोसिस्टम में बहुत सारे स्पेसीज होते हैं, प्लांट स्पेसीज होते हैं, एनिमल स्पेसीज होते हैं, माइक्रोब्स की स्पेसीज होती है। इन इकोसिस्टम ऑफ ट्रॉपिकल कंट्री लाइक इंडिया, few species of living organism are found everywhere in a large number। अब जो हमारी कंट्री है तो वो ट्रॉपिकल इकोसिस्टम में आती है। इट इज़ रिचनेस ऑफ इकोसिस्टम। तो हमारी इंडिया में बहुत अलग अलग टाइप्स के इकोसिस्टम देखने को मिलते हैं। अब जो इकोसिस्टम होती है तो उनमें देर आर डिफरेंट डिफरेंट लिविंग थिंग्स और डिफरेंट स्पेसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन लार्ज नंबर। तो बहुत सारी क्वांटिटी में और लिविंग थिंग्स देखने को मिलते हैं। रिमेनिंग स्पेसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड इन स्मॉलर नंबर्स। तो कुछ ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं कि वो कम मात्रा में देखने को मिलते हैं इकोसिस्टम में। सम स्पेसीज आर वेरी फ्यू इन नंबर। वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम फाउंड ऑन अर्थ, ईच प्लेस हैज़ डिफरेंट इकोसिस्टम। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट, प्लांट, ओशियन, रिवर एक्सेट्रा। तो फॉरेस्ट की अलग इकोसिस्टम होती है, पॉन्ड की अलग इकोसिस्टम होती है, ओशियन इज डिफरेंट इकोसिस्टम, रिवर हैज़ ऑल्सो डिफरेंट इकोसिस्टम। देयर आर वास्ट क्वालिटी ऑफ इकोसिस्टम्स आर देयर। टाइप ऑफ इकोसिस्टम्स आर फॉर्म अकॉर्डिंग टू साइज, प्लेस, क्लाइमेट, टाइप ऑफ प्लांट्स। अब जो इकोसिस्टम होती है तो वो उनके साइज पर, क्लाइमेट एंड टाइप्स ऑफ प्लांट्स पर डिपेंड होती है। Now there are different types of ecosystem found in biosphere। अब जो इकोसिस्टम होती है वो बहुत ही अलग अलग टाइप्स की इकोसिस्टम होती है और इन सभी इकोसिस्टम से क्या बनता है, बायोस्फीयर। फॉर एग्जांपल देयर इज अ डेजर्ट इकोसिस्टम, देयर इज अ पॉन्ड इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो इन्हीं सभी इकोसिस्टम से क्या बनता है, बायोस्फीयर बनता है। स्पेसिफिक फंक्शंस कंटिन्यूस अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट। तो अलग अलग जो इकोसिस्टम होती है उनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है उनके एनवायरनमेंट के रिलेटेड। तो ऐसी ही अलग अलग इकोसिस्टम एनवायरनमेंट पर डिपेंड होती है। तो दिस एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। Now in some region on the earth a large area has some climate and abiotic factor. The living organism in those area also similar, so specific ecosystem develop in vast area। तो जब अगर क्लाइमेट अच्छा मिला, अबायोटिक फैक्टर अगर बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में है तो वहाँ की जो इकोसिस्टम होती है वो वहाँ जो इकोसिस्टम होती है वो अच्छी तरह से डेवलप होती है। सच लार्ज इकोसिस्टम इज कॉल्ड बायोम्स। तो इसी लार्ज जो इकोसिस्टम होती है तो उसे हम बायोम्स बोलते हैं। रिचनेस ऑफ स्पेसीज, रिचनेस ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स। तो अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स, एनिमल्स उस इकोसिस्टम में अगर ज़्यादा मात्रा में मिले, देखने को मिलते हैं तो वो इकोसिस्टम वास्ट एरिया डेवलप कर लेती है, तो उसे बायोम्स बोला जाता है। दीज बायोम्स कंटेन मेनी स्मॉल इकोसिस्टम। तो ऐसे ही बायोम्स में छोटे छोटे अलग अलग इकोसिस्टम देखने को मिलते हैं। दैट मीन्स प्लांट इकोसिस्टम इज डिफरेंट, ग्रास इकोसिस्टम इज डिफरेंट, एनिमल स्पेसीज इकोसिस्टम इज डिफरेंट। दैट्स लाइक अर्थ इटसेल्फ इज अ वास्ट इकोसिस्टम। जो हमारी अर्थ है वो पूरी तरह से एक इकोसिस्टम ही है। टू टाइप्स ऑफ बायोम्स आर फाउंड ऑन द अर्थ, लैंड बायोम्स एंड एक्वेटिक बायोम्स। तो जो हमारी लैंड है वो बड़ी एक इकोसिस्टम है, तो वहाँ टू टाइप्स के बायोम्स देखने को मिलते हैं, एक लैंड बायोम्स एंड एक एक्वेटिक बायोम्स। तो एक जो पानी की पूरा है, ओशियन, रिवर, पॉन्ड, दैट इज द एक्वेटिक बायोम्स। एंड जो लैंड है तो दैट इज लैंड बायोम। नाउ लुकिंग बैक, new words are created with development in science. Now which word in science we discuss? Same is the case
विथ अ वर्ड इकोसिस्टम। तो जैसे साइंस में नए नए वर्ड्स आते हैं, तो वैसे ही इकोसिस्टम में नए नए वर्ड्स आते हैं। हाउ कैन वी डिस्क्राइब द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर इन वन वर्ड। तो हम ऐसे ही बायोलॉजिकल एंड जो फिजिकल फैक्टर्स होते हैं उसे एक ही शब्द में डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। इन 1930 दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड टू साइंटिस्ट रे क्लैफेम। तो यही जो क्वेश्चन आया है मन में, तो ये 1930 में फर्स्ट टाइम जो साइंटिस्ट थे रे क्लैफेम, तो इनके मन में आया। इकोसिस्टम वाज हीज आंसर। तो उनका ही एक आंसर मिला, इकोसिस्टम मतलब जो फिजिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स है साइंस के, तो उसको ही पूरे फैक्टर्स को इकोसिस्टम ये नाम उन्होंने दिया। हिज कलीग एजी तेंसे यूज दिस वर्ड इन 1935। तो उनके जो कलीग थे एजी तांसेल, तो उन्होंने इन 1935 में फर्स्ट टाइम ये वर्ड यूज किया। बायोटिक कम्युनिटी इज द अनदर नेम ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम को ही दूसरा नाम दिया गया है बायोटिक कम्युनिटी।